سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی جنریشن، اس کے لیے سبھی فکر مند ہیں۔ کیا ماڈرن ورلڈ کے لوگ، کیا دنیا دار اور کیا دیندار لوگ، ہم سبھی فکر مند ہیں اپنے آنے والی جنریشن کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، خصوصاً اپنی اولاد کے لیے کہ بھی کیا کریں، ان کا کس طرح ان کو چلائیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ لیکن المیہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کی کامیابی کا تو سوچ لیا کہ کس طرح، کس رستے پر، کس ایجوکیشن میں، کس فیلڈ میں ان کو چلائیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو زندگی ہے یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال پھر ختم ہو جائیں گی۔ نہیں جی بڑی اچھی زندگی جی، آپ کو 60-70 سال جی گئے، اور نہیں جی یہ تو انکریڈیبل لمبی زندگی اس نے پائی، چلو کوئی 80 سال 90 سال پا لی۔ پھر آپ اور میں کیا اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ یس اس کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے؟ وہ کتنے سال کی ہوگی؟ 10 سال، 50 سال، 100 سال، 500 سال، 1000 سال، لاکھوں سال، انفینٹی ایئرس، نہ ختم ہونے والی، ان گنت، جہاں آپ کی میری گنتی ختم ہو جاتی ہے وہاں تک بھی۔ تو پھر اس تھوڑی سی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم وہ آگے والی جو زندگی ہے اس کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ کیسے داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو ظاہرہ تعلیم ضرور دیتے ہیں، ضرور بر ضرور دیتے ہیں، کیا انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، چاہے یو کے ہو، یورپ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، ہم اپنے بچوں کو ظاہری تعلیم ضرور دیتے ہیں، سکول ضرور بھیجتے ہیں، کالج ضرور بھیجتے ہیں، یونیورسٹی تک ضرور جائے، ڈگری ضرور کرے، کسی نہ کسی ایک فیلڈ میں اسے اسپیشل کورسز بھی کراتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بچے کو خود صبح سکول چھوڑ کے آتے ہیں، شام کو لے کے آتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں۔ کتنے سال؟ کچھ 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال نہیں، سالوں سال ڈیوٹی دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، انرجی دیتے ہیں، کس لیے؟ کہ یہ تعلیم حاصل کر لے۔ بھئی وہ تعلیم کس کام آئے گی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سوچیں یہ تعلیم کس کام آئے گی؟ اچھی جاب ڈھونڈنے میں کام آئے گی کہ کسی اچھی جاب پر لگ جائے گا؟ تو پھر کیا کمال کیا؟ یہ تو ماڈرن سلیوری کا دور ہے، ماڈرن سلیوری کا دور ہے۔ جو پڑھے گا زیادہ پڑھ جائے گا، کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، آئی ٹی ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہو، جو پڑھ گیا پھر وہ کدھر گیا؟ کسی اچھی فرم میں جا کے ملازم ہو گیا، کسی اچھی پوسٹ پر لگ گیا، کسی گورنمنٹ کے محکمے میں لگ گیا، کیا کرے گا وہ بابا؟ کیا وہ نوکری، کیا وہ جاب، کیا وہ کیا کہنا چاہیے اچھی پوسٹ آپ کے لیے باعث برکت، باعث مغفرت بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ تو پھر آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ آج کیا سکھایا آپ نے اپنے بچوں کو؟ آپ کی اصل کامیابی جو ہڈن ہے وہ دین کی تعلیمات میں ہے۔ جس طرح ہم نے ہر روز اپنے بچوں کو 8 گھنٹے اسکول، کالج، یونیورسٹی، ظاہرہ ایجوکیشن سکھائی، کیا ہم نے 8 گھنٹے اسے روزانہ دین سکھایا؟ نہیں سکھایا۔ آج بھی ہم مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو، قاری صاحب کو ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جناب دعائے قنوت نہ آتی ہو تو پھر بتائیں کہ اس کی جگہ الٹرنیٹیولی کیا دعا پڑھ لیں، کون سی سورہ ہے، کون سی دعا ہے جو ہم پڑھ لیں، چلیں وہ ہمارا دعائے قنوت والا معاملہ جو ہے وہ فل ہو جائے۔ ہائے افسوس، ہم نے سائنس تو سیکھ لی،
ड्राइविंग तो सीख ली, IT कंप्यूटर तो सीख लिया, मॉडर्न डिवाइसेस मोबाइल तो सीख लिए कि कैसे ऑपरेट करने हैं। हमें दुआए कुनूत नहीं सीखनी, हमें नमाज जनाजा नहीं सीखनी। बहुत हो गया जी, कोई बड़ा बूढ़ा, कोई बाप, कोई माँ, कोई बाप, कोई दादा, चाचा, अच्छा जी अच्छा मौलवी साहब को बुलाओ भाई, मौलवी साहब को बुलाओ, वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। अफसोस बेटा इस काबिल ना किया कि वो अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके। अफसोस, वो बच्चा आपके लिए क्या सदका जारिया बनेगा। नहीं जी नहीं, मैंने उसे बड़ी मेहनत की, उसे डॉक्टर बनाया, कि फेयर एनफ, चलो इसी पे बात कर लेते हैं। आपने उसे डॉक्टर बनाया, क्या किया भाई? उसने यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ, मेडिकल में उसे दाखिला ले दिया, डिग्री के बाद मेडिकल में दाखिला लेके दिया, 4 साल उसने डॉक्टरी पढ़ी, 2 साल उसने स्पेशलाइज में लगाए, 2 साल उसने हाउस जॉब की, 32 साल की उम्र में जाके उसने एक प्रैक्टिकल इंसान की सी जो है लाइफ वो शुरू की, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की। अब क्या गारंटी है कि उसकी जो उम्र है बाकी वो 32 साल होगी? चले फॉर आर्गुमेंट से होगी जी, होगी, उसकी 32 साल उम्र होगी, तो फिर उसमें 15 साल 16 साल तो उसने सो के गुजार दिए। कितनी कमाई की भाई? आपकी 32 साल की कमाई और उस बच्चे की 32 साल की जिंदगी हमने इन्वेस्ट कर दी डॉक्टर बनने में, और निकला क्या उसमें से? मिला क्या उसमें से? नहीं जी, वो डॉक्टर बन गया, बड़ा अच्छा, बड़ी पोस्ट पे, बड़ा सर्जन बन गया, बड़ा स्पेशलिस्ट बन गया, कंसल्टेंट प्रोफेसर बन गया, वो फिर है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। आपको क्या भाग, आपको क्या मिला? क्या वो बच्चा आपके लिए सदका जारिया बना? क्या वो बच्चा रोजाना कुरान पढ़ के आपको इसाले सवाब करेगा? आपको क्या मिला? यही तो इल्यूजन है, यही तो फरेब है, यही तो धोखा है जो आज के सिस्टम ने हमें दे दिया। जब हम अपने बच्चों को इनरोल कर देते हैं सिस्टम में, तो बच्चे इनरोल हो जाते हैं, फिर वो पार्ट ऑफ सिस्टम बन जाते हैं। फिर वो शादीशुदा लाइफ के बाद, जॉब के बाद, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो माँ बाप के पास बैठ के सिर्फ यही सुन लें कि हाँ अम्मा जी आज का आपका दिन कैसा गुजरा, अब्बा जी हुजूर मेरे लायक कोई खिदमत हो, कोई काम हो बताइएगा। आप सारा दिन घर बैठे रहते हैं, बोर होते हैं, तंग पड़ जाते हैं, कोई मैं आपके लिए एंटरटेनिंग का कोई सामान ले आऊं, कुछ मैं आपके पास बैठ के 10 मिनट आधा घंटा अच्छा वक्त क्वालिटी टाइम आपको दूं? नहीं। हमारे जितने भी बड़े बूढ़े हैं, बच्चे उनको टाइम नहीं देते, बहुएं उनको लुक आफ्टर नहीं करती, बेटियां अपने घर वाली हो जाती हैं, एंड बुजुर्ग क्या करता है? वो घूम घुमा के ना मस्जिद का रुख कर लेता है कि अच्छा यार मैं नमाज पढ़ा हूं, अच्छा यार मैं मस्जिद जा रहा हूं, वहां मैं जरा बैठ के कुरान की तिलावत करूंगा। फिर वो क्या करता है? घर पे बेचारे की उसकी चलती नहीं है, मस्जिद में अजान देने पर भी वो लड़ पड़ता है किसी ना किसी से कि मैंने अजान देनी थी, तूने क्यों दे दी, या मैंने अजान दी थी, अब मैंने अकामत कहनी थी, मेरा हक था, तूने क्यों खड़े होकर अकामत कह दी। लो, बूढ़ों को हमने इस काम के लिए छोड़ दिया। खुदारा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, बच्चे के पैदा होते ही जिस तरह आपने 8 घंटे की ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली कि इसको स्कूल छोड़ना है, स्कूल से लेके आना है, इसके यूनिफॉर्म का ख्याल रखना है, इसकी किताबों का ख्याल रखना है, इसकी एजुकेशन का ख्याल रखना है, इसकी हेल्थ का ख्याल, इसकी फीडिंग का ख्याल रखना है, इसके सोने जागने का ख्याल रखना है, इसी तरह पूरी जिम्मेदारी के साथ ख्याल करें कि उसको नमाज सिखाएं, उसको कुरान सिखाएं, उसको कलमे सिखाएं, उसको दुआएं सिखाएं, उसे कोई तस्बीहात, कोई मामूलात, कोई दुरूद पाक सिखाएं, और ना सिर्फ सिखाएं, उसके साथ बैठकर उसकी प्रैक्टिस किया करें। हम लोग ऐसे नहीं करते। फिर जब बच्चे अपने सिस्टम में, वही सिस्टम जिसमें हमने उन्हें इनरोल किया था, जब उसमें वो इनरोल हो जाते हैं पूरी तरह, फिर कहते हैं जनाब पीर साहब दुआ फरमाएं, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। वो कैसे मानेगा? पीर साहब कोई तावीज दे दें, मेरा बच्चा जो है ना वो बस मेरे पास भी नहीं आता, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं, मेरी केयर ही नहीं करता, या तो अपनी जॉब पे होता है या फिर अपनी बीवी के पास होता है। अब वो तावीज कैसे काम करेगा? मैंने तरबियत ही ऐसी की, मैंने उसे ऐसे सिस्टम में डाल दिया जो सिस्टम उसको लेके चला गया।
मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूं, खुदारा डोंट टेक मी रॉन्ग, आप उसे डॉक्टर बनाएं, पर यार उसे कुरान की डॉक्टरेट भी तो कराएं। कुरान पढ़ने के लिए मौलवी बुलाएंगे हम, नमाज के जनाजा के लिए मौलवी बुलाएंगे, हमने उसे सिखाया ही नहीं कि सीरत तैयबा क्या है, हमारे आका व मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी कैसे गुजारी, उनके हुस्ना क्या थे, उनके अच्छे नेक जो खूबसूरत बातें हैं वो क्या थी तालीमात, हमने सिखाई नहीं। अगर जिंदगी में अपने बच्चे को अपने लिए सदका जारिया बनाना चाहते हैं, अपनी आंखों की ठंडक बनाना चाहते हैं, अपनी आखिरत का सुकून उनकी कामयाबी में ढूंढना चाहते हैं, तो खुदारा उन्हें जितनी ताकत से आप डिग्रियां करा रहे हैं उससे ज्यादा ताकत से उसको दीन के साथ पैबंद कर दें, वाबस्ता कर दें, जोड़ दें। पूरा पूरा ख्याल रखें अपने बच्चों का, पूरा पूरा पहरा दें उन पर, पूरी पूरी ड्यूटी करें उन पर कि ये बच्चा नमाज सीख जाए, इस बच्चे को तहारत का पता हो, इस बच्चे को नमाज का पता हो, इसको नमाज जनाजा भी आती हो, इसको कलमात भी आते हों, इसको दुरूद पाक भी पढ़ने का शौक और ज़ौक पैदा हो जाए, इसको अल्लाह की रजा का ज्यादा ख्याल हो बनिस्बत अपनी बीवी की रजा के, बनिस्बत अपने टीचर की रजा के, बनिस्बत अपने बॉस की रजा के, इसको अल्लाह की रजा अव्वलियत पर हो। कोई ऐसा काम ना करे जिससे अल्लाह और उसके प्यारे नबी हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी होती हो। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ये मोराल तो सिखाते नहीं है, फिर कहते हैं जी वो हमारी बात नहीं सुनता, वो जनाब हमारी तरफ देखता नहीं, वो हमें टाइम नहीं देता। कैसे टाइम देगा? जब उसे टाइम चाहिए था आपने टाइम नहीं दिया, आपने टाइम जो दिया वो उसकी तालीमात के लिए, उसके स्कूल के लिए, उसकी यूनिवर्सिटी के लिए, उसके डिग्रियों के लिए, उसकी आगे अच्छी अच्छी जॉबों के लिए दिया। जब आपने उसे बना ही एक मॉडर्न स्लेव दिया है तो अब आप उससे क्या तवक्को करते हैं? प्लीज प्लीज, इट्स नॉट टू लेट। आज से ही अपने बच्चों को कुरान की, दीन की तालीमात दिलाएं। अगर आप खुद पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, खुद पढ़ाएं। नहीं जी मैं इतना अच्छा काबिल आदमी नहीं हूँ, मेरी तजवीद अच्छी नहीं, मेरे मखरज अच्छा नहीं, मेरी किरात अच्छी नहीं है, फेयर एनफ, किसी मौलवी साहब से, कारी साहब से, हाफिज साहब से उन्हें पढ़वाएं। ना सिर्फ पढ़वाएं बल्कि खुद भी फिर पास बैठ के पूछा करे कि हाँ बेटा आज आपने क्या पढ़ा, मुझे भी सुनाओ। नमाज पढ़े उसे साथ लेके जाएं, क्या हो बेटा हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं, नहीं घर पे पढ़ रहे हैं, चलो आओ मेरा बेटा आप भी अपनी जान नमाज ले आओ, हम दोनों मिलके जमात कर लेते हैं। खुद छोटी छोटी सूरतें याद करें, उसको भी याद कराएं। कोई गलत बात करे फौरन उसे बताएं कि बेटा ये रॉन्ग है, ये गलत है। अभी से उसकी नोक पलक दुरुस्त करेंगे तो बड़ा होकर जो अच्छी बातें आपने सिखाई होंगी उसके दिल दिमाग में घर कर जाएंगी। उसे पता होगा कि मैंने ये करना है और ये नहीं करना। जब हमने उसे कहा ही नहीं ऐसा कुछ, तो बाहर जाके, खास तौर से ये यूरोप की, अमेरिका, कनाडा की बात कर रहा हूँ, बाहर जाके स्कूलों में वो क्या सीखेगा? वो इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश माहौल अडॉप्ट करेगा, वो यहाँ का सिस्टम अडॉप्ट करेगा, फिर वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। अगर मुआशरे में फाशी और दूसरी बदकारियां चल रही हैं तो वो भी उनमें शामिल हो जाएगा। अगर मुआशरे में कामयाबी की दौड़ लगी हुई है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं ये डिग्री हासिल कर लूं, मैं ये नौकरी हासिल कर लूं, तो वो भी उसी दौड़ में शामिल हो जाएगा कि मुझे ये डिग्री मिल जाए, मुझे ये डिग्री मिल जाए, ये मुझे नौकरी मिल जाए, ये मुझे ऐसा। हमने अपने टाइम को पैसों के अगेंस्ट बेच दिया। हमारे पास अब फुर्सत ही नहीं है कि मैं नमाज पढ़ूं, मेरे बच्चों के पास फुर्सत ही नहीं है कि वो नमाज पढ़ें। ईमानदारी से बताएं कितने लोग हैं, अपने इर्द गिर्द जायजा लें, अपनी लाइफ का हदूद अरबा खुद ही टटोल के देख लें, कितने लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफेशनल जॉब्स पर हैं और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल्स आर अराउंड यू? कितने लोग हैं? वेरी रियल। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में खत्म हो गए, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आप 100 अकाउंटेंट को जानते हैं ना तो 5 ही होंगे जो नमाजी होंगे।
اگر آپ 100 ڈاکٹروں کو آج تک ملے نا تو ان میں 5%, 10%, 7% ہی ہوں گے جو نمازی ہوں گے. اس لیے آج سے فکر کریں اپنے بچوں کا، آج سے ان کو خیر اور بھلائی کی طرف ڈالیں. تعلیم تو اتنی ہی کافی ہے کہ اسے مورال اچھی چیزیں معاشرے کی پتہ چل جائیں. نہیں تو ہر بندہ اچھی ڈگری اور اچھی نوکری کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. یہ لائف نہیں ہے، یہ کامیابی کی طرف رستہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ڈاکٹری کے انتہا پر پہنچ گیا اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا تو کیا قبر کے یا حشر کے سوالوں میں سے کہیں سوال ہے کہ بھی کون کون سی ڈگری لے کے آئے ہو؟ افسوس نہیں ہے، نہیں ہے. وہ ساری زندگی ڈاکٹری پڑھاتا رہے، ساری زندگی ڈاکٹری کی پریکٹس کرتا رہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے. آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اس نے ایک بار بھی صبح اٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے قرآن پاک کھول لیا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ. اس نے اللہ اکبر کہہ کے اپنے رب کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجدہ کیا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ. خدا را اس کی فکر کریں. اپنے بچوں کو دینی تعلیم لازم دلائیں، لازم، بالکل اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. بھئی میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، روزی روٹی کماتا ہوں، بچوں کو کما کے لا کے حلال رزق دیتا ہوں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یقین کیجئے گا اگر آپ نے دین کی سمجھ بوجھ نہیں دی، اگر آپ نے انہیں دین نہیں سکھایا تو آپ کا وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے آپ محل بھی کھڑے کر لیں گے نا تو بیکار ہے، بیکار ہے. کیوں؟ آپ نے تو ایک دن چھوڑ کے چلے جانے. بچے اللہ کرے اچھے ہو جائیں، اللہ کرے اچھے ہو جائیں تو ایسے محل وہ کئی بنا لیں گے. اور اگر خدا نخواستہ دنیا کے خواستگار ہو گئے تو ایسے 100 محل بھی چھوڑ کے جائیں گے نا تو بھی وہ بیچ کے کھا جائیں گے. اچھا نہیں جی نہیں، میرے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے بہن بھائی، آپ کے جو کزنز ہیں، جو آپ کے بردرز ہیں، آپ کے جو سسٹرز ہیں، دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہوتا پراپرٹیوں پر. کتنی آرگومنٹس ہوتی ہیں، کتنی کھینچا تانی ہوتی ہے، کتنی حق تلفی ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایمانداری سے حصہ بانٹ کے گھر جا کے کسی کو سے کہیں کہ اچھا میری بہن یہ آپ کا حصہ باپ کی وراثت میں سے بچا تھا، میں آپ کو دینے آیا ہوں. کتنی بیواؤں کا حق لوٹ لیا جاتا ہے، کتنے بے سہارا جو یتیم بچے ہیں ان کی چھت چھین لی جاتی ہے. کیا وجہ ہے بھئی؟ یہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے میرا دل تھرا کیوں نہیں جاتا، کانپ کیوں نہیں اٹھتا؟ نہیں کانپے گا، نہیں اٹھے گا اگر اندر ایمان کی حرارت موجود نہیں ہے تو، اگر ایمان کی حلاوت موجود نہیں ہے تو. ایمان ہی موجود نہیں ہے تو کیسے میں کسی کا فکر کروں گا؟ میں تو دیکھوں گا میرا بھائی ذرا منہ ادھر کرے، میں اس کی جائیداد پراپرٹی اپنے نام لگوا لوں. کیوں جی؟ وہ جناب یورپ چلا گیا ہے، وہ جناب دبئی چلا گیا، سعودیہ چلا گیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، اس کا مکان میں نے اپنے نام بھی لگا لیا، میں نے بیچ کے بھی کھا لیا. میں نام نہیں لیتا، میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، بہن نے بھائی کا حق مار لیا، بھائی نے بہن کا حق مار لیا، دونوں بھائی جائیداد پر لڑ رہے ہیں کہ نہیں وہ اچھی والی پراپرٹی تھی تو تم نے رکھ لی، وہ گھٹیا تھی تو کم قیمت تھی وہ تم نے مجھے حصے میں دے دی. لڑائیاں ہو رہی ہیں. خدا را ان کے پیچھے نہ رہیں، یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. دین کا علم سیکھیں، کم از کم اتنا علم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ زندگی جینا آسان ہو جائے، زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے گزرے. اتنا دین ضرور سیکھ لیں، پلیز ضرور سیکھ لیں. باقی آپ ڈگریاں حاصل کریں، ڈاکٹری سیکھیں، آپ انجینئر بنیں، آپ اکاؤنٹنٹ بنیں، آپ کے بیٹے جو ہیں سولسٹر بن جائیں، مجھے ایجوکیشن پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن یہ ساری افراتفری، یہ تذبذب، یہ اضطراب، یہ کھینچا تانی، یہ بے چینگی، یہ سب دنیا کے علوم میں ہے. اگر راحت و سکون چاہتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی تو خدا را اسے دین سکھائیں.
उसे कुरान सिखाएं, उसे जिक्र करना सिखाएं। इंशाअल्लाह ताला वो उसके लिए भी अच्छा होगा जिंदगी जीने के लिए, और आपके लिए भी अच्छा होगा सदका जारिया के तौर पर, आपके पीछे बहुत सारे समरात सवाब आने के लिए। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को वो औलाद नरीना अता फरमाए, या वो औलाद जो हमारे पास अल्लाह पाक ने दी हुई है उसको इतना नेकोकार परहेजगार बना दे कि वो हमारे आंखों की ठंडक बने, वो हमारे लिए सदका जारिया बने, वो मुत्तकी और परहेजगार हों। वो कई ऐसे लोगों को जो दीन से हटे हुए हैं उनके लिए मशअल राह बन जाएं। अगर कोई आलम दीन बनाए, कोई मुफ्ती बनाए, कोई हाफिज बनाए, कोई कारी बनाए, फिर तो बहुत अच्छी बात है, वो कईयों को आगे फिर संवारेगा। लेकिन अगर नहीं बना सकते तो कम से कम इतना दीन जरूर सिखाएं कि उसके लिए अपनी जिंदगी जीना और आपके लिए सदका जारिया बनना आसान हो जाए। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्ली अला। या रब्बे जुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, हम सब की गलतियां खताएं माफ फरमा, हमारी कोताहियां सुस्तियां बेअदबियां माफ फरमा। अल्लाह हमारे आबा व अजदाद के, हमारी औलादों के, आने वाली नस्लों के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। अल्लाह ये जो महफिल जिक्र हम सजा लेते हैं बेशक तेरे करम से मुमकिन है। अल्लाह ये महफिल जिक्र कबूल फरमाते हुए हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को हदायत वालों पर कायम रखना, हदायत पर रखना, इस्तकामत पर रखना, दीन इस्लाम को समझने की, उसकी प्रैक्टिस करते रहने की तौफीक अता फरमाना। अल्लाह जितनी भी जिंदगी है तेरी बारगाह में क़याम, रुकू और सजदे करते गुजरे, ऐसा करम अता फरमा। तेरी कलाम, तेरे कुरान की तलावत करते गुजरे, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह तेरे महबूब नबी और हमारे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदों के नजराने पेश करते हुए गुजरे, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह जितनी भी जिंदगी है दीन इस्लाम पर इस्तकामत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। जब वक्त मौत आए तो अल्लाह कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना। तेरी बारगाह में आए तो अल्लाह अपने सीनों को तेरे नूर से मुनव्वर करके आए। तेरी बारगाह में आए तो कल्बे सलीम लेकर आए। या अल्लाह दुनिया में आना, दुनिया से जाना बा मकसद कर देना। हर वो काम जिसमें तेरी और तेरे महबूब की रजा और खुशी शामिल हो वो करने की तौफीक अता फरमा। हर बुराई, गंदगी, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को हदायत वालों में रखना, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बनाना, हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाना। या अल्लाह जिनके पास औलाद है और वो परेशान है औलाद के लिए, अल्लाह उनकी औलादों को हदायत अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है, मालिक अपने खजाना गैब से उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह अपने साले बंदों में हमें शुमार फरमा ले। अल्लाह अपने साले बंदों वाले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। सादकीन जैसा ईमान अता फरमा। अल्लाह हमें हर वो काम जिसमें तेरी खुशी हो उसकी तौफीक दे दे। अल्लाह जिसमें उम्मत के लिए भलाई खैर हो उसकी तौफीक दे दे। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा, आपके खानवादों की खैर फरमा, आपके साहबजादगान की खैर फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक को अल्लाह उम्र खिजरी अता फरमा। हुजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा। अल्लाह इन वलियों के नक्शे कदम पर चलते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जितने भी सामाईन और नाजरीन इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, दुआ में आमीन कह रहे हैं, अल्लाह इनकी तमाम दिली हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक जरूरतें अपने खजाना गैब से पूरी फरमा। अल्लाह तू हम सबको हमसे ज्यादा जानता है, तू बेहतर जानता है कि क्या चीज हमारे हक में बेहतर है। अल्लाह हमें हर वो चीज जो हमारे हक में बेहतर हो अता फरमा दे। जो ऐसी चीज हम मांगे, ऐसी दुआएं हम मांगे मालिक जो हमारे हक में बेहतर नहीं है,
मालिक तू आलिमुल गैब है, तू मुसब्बिबुल असबाब है, तू सब जानता है। अल्लाह हमें उसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। अल्लाह आज तक जो भी खैर और भलाई की दुआएं मांगी सब कबूल फरमा। हमें उन दुआओं के इवज इस दुनिया में भी और आखिरत में ही बहुत बड़ा हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो मकरूज हैं कर्जों से खलासी अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल और तैयब रिज़्क़ अता फरमा, अच्छा रोजगार अता फरमा, जिनके काम कारोबार हैं पर वो परेशान हैं, अल्लाह अपने खजाना गैब से उन्हें तरक्की और कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को सही सिमत में हमें चलाने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमा, समझ बूझ अता फरमा, हमारे बच्चों को अदब वाला बना दे, हमारे बच्चों को दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह ऐसा करम अता फरमा कि दीन इस्लाम का बोल बाला हो जाए। कुल उम्मत मुसलमा की खैर, आलम इस्लाम की खैर, मुसलमान मुल्कों सरहदों इलाकों की खैर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा। पूरी उम्मत मुसलमा में जो कोई भी बीमार है अल्लाह सबको शिफाएं अता फरमा। खुसूसन बिलखुसूस उम्मत मुसलमा के लिए और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआगो हैं। अल्लाह अपना रहम व करम अता फरमा, रहम व करम अता फरमा। हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। अल्लाह आज तक जिन्होंने भी हमसे मोहब्बत की, खिदमत की, सिलाए रहमी किया, अल्लाह उनको दुनिया व आखिरत में भलाई और कामयाबी अता फरमा, उन्हें दुनिया व आखिरत में तरक्की अता फरमा। अल्लाह अजर अजीम अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आप सबको आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।